I can say conversation or some short FAQs if somebody have, probably there must be a few females in the class as well. So if they have any questions, anybody in the audience have a questions, we'll definitely try to address that questions. So I mean, it's my pleasure and privilege to have this session with the Knox Medi Solution. So as I told you, like your company, I have my own company. Apart from this medical, this treating as a doctor, treating a patient, I have my company in Ahmedabad as well as in Dubai. I'm also dealing with the medical doctors. I'm trying to provide them the license in all Middle East country mainly. Also, we are doing for the UK exams all. So those who wants to settle in UK in any specialty, any branch, post MBBS like FRC, PFRCOG, MRCOG, MRCP, these all UK exams, and I mainly deal with the Gulf Middle East country exam of all GCC countries like UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, right? So these are the GCC countries. My client is the MBBS or post MBBS doctors, right? Those who did their MBBS and now looking for future, right? Out of India. So our company is providing the online coaching, online subscription, live classes, right? Recorded videos, right? By all experts like gynecologists, pediatricians. So we're going to see it very quickly. So I welcome all. Hopefully, sir, everybody join, right? If I'm not wrong. Yes, sir. Great, wonderful. So I'll start the main thing, and I'm first of all thankful to the management and this all active peoples of this Knox, those who has given me and provided me the opportunity to speak on this very interesting topic on breast and cervical cancer. Right, so this is the collaboration with the Knox Medi Solution. This is what we are providing all the exams related study material, coachings, everything for this all various exams in Middle East country. I'm author of couple of books. One of them is very popular Prometric 1000 MCQ book, which is going almost in more than 50 countries across the globe. So, I mean, you can see the website later on, all right, how to get in, that we probably help the students who wants to relocate or those who wants to settle themselves out of the country. So this Prometric 1000 MCQ book is very important. We provide online subscriptions, Oman Viva coaching, data flow, and lots of crash course, not going much in detail. This is my CV, right? I myself, Dr. Munjal, practicing almost more than 20 years with several national, international accreditation. This is Dr. Aarti, who is a consultant pediatrician, right? She is also in my team. She is Dr. Maddie, right? So this Dr. Maddie is also my emergency physician, right? She is Dr. Shikha. Shikha is also taking care of gynec subjects. Dr. Ankit, he is a gastroenterologist, and we have many other teams. So I'll just mention the main things. This is our contact detail, and this is our subject today, right? Is to little spread the awareness of cancer. I'm practicing almost for more than 20 years now and treated more than 100,000 patients, close to 1 lakh patients with excellent teaching experience of more than 10 years. So let's jump to our main topic, right? So, I mean, just make it a little more interactive. If you want to ask anything, you can even stop me in between. So this is the first slide. Can we cure the cancer, right? So usually, I mean, most of the people say, oh, Excuse is me, it? Dr. Pandya. Yes, sir. Sir, we have some students here, so we are comfortable in Hindi and English both. Okay. तो हिंदी भी चलेगा. Very fine, sir. That's okay, fine, sir. No problem. I can speak in Hindi as well. So I thought that all people are English, so no problem. So हम आमतौर पे हम देखते हैं कि सर कैंसर की जब बात आती है तो क्या होता है कि भाई कैंसर क्योर होगा कि नहीं होगा. तो व्हाट हैपन, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर इज इनक्योरेबल, यानी नहीं क्योर हो सकता. तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, राइट, that cancer is absolutely curable. I highlighted the three words which is extremely important in India. कैंसर इज क्योरेबल, यस, द आंसर इज यस, क्योरेबल. कब कैंसर क्योर हो सकता है? जब अर्ली डिटेक्ट होता है. ये वर्ड इंपॉर्टेंट इसके लिए, आमतौर पे 80%, एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 80% ऑफ द कैंसर्स डिटेक्टेड इन इंडिया, राइट, इन अ थर्ड और फोर्थ स्टेज.
यू गो एंड चेक इट विद द WHO वेबसाइट, राइट। उसका मतलब क्या है कि 80% लोग पेशेंट जब मेरे पास आते हैं सर, तो तीसरे या चौथे स्टेज में आते, और रिवर्स 80% जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट होते हैं। अब जो कैंसर तीसरे चौथे में होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एडवांस स्टेज में मरीज डॉक्टर के पास जाता है, राइट। और ये लोग जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में 80% लोग पहले या दूसरे स्टेज में आते, इसके लिए उनका क्योर बहुत अच्छा होता है। हम देखते हैं कि भाई फॉरेन लोग ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, या अमेरिका जाते हैं, या वहाँ अच्छे स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली आपको डिटेक्ट करना चाहिए। कैसे करना मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ। तो इफ डिटेक्टेड अर्ली, यानी हमको अर्ली पे हमको एकदम करना चाहिए, स्ट्रेस करना चाहिए कि भी आपको अर्ली डिटेक्ट करना है। नॉट अबाउट द कैंसर, एनी डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, यू नेम द प्रॉब्लम, इट शुड बी डिटेक्टेड अर्ली, विच गिव्स ओवरऑल द बेटर रिजल्ट। तो एक अर्ली डिटेक्ट, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये दूसरा प्रॉब्लम है इंडिया में। आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, पहले दूसरे स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, पर हम लोग इतना रिसर्च करते हैं इंडिया में, मैं ऐसे कई बार जॉक में बोलता हूँ कि इंडिया में हर घर घर में डॉक्टर है। सबको ऐसा लगता है मैं डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर को क्या पता चलता है। तो ये पहले स्टेज और दूसरे स्टेज की मार्च 2024 में उसकी डायग्नोसिस हो गई, और डॉक्टर को पहुंचने के तक तो वो 6 महीने में, अगस्त सितंबर में सब रिसर्च करके फिर पहुंचता है। तब तक उसके इलाज, घरेलू इलाज, उसके बाबा की फाकी, ये वो सब जितने भी एकदम अवेलेबल रिसोर्सेज है, राइट, फ्री में, गूगल बाबा, सबके एकदम प्रयोग अच्छी तरह कर लेता है, राइट। तो ये 6 महीने निकाल दिए सर आपने ओवरऑल। तो ये जो बीमारी जो मार्च में हमको ट्रीटमेंट चालू करनी थी डिटेक्शन के बाद, और अभी हम अगस्त में सोच रहे, और ये कब सोच रहे, जब हमने कुछ प्रयत्न किया, हमसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमने सब हमारी एक्सपर्टीज आजमा ली, और फिर नहीं हुआ, बाद में हम करते। तो ऐसा नहीं करना है सर। तो अर्ली डिटेक्शन एज वेल एज प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, राइट। एंड ट्रीटमेंट किससे करानी है? हकीम से नहीं करानी है, क्वेक से नहीं करानी है, ट्रेन डॉक्टर, ट्रेन टीम से करानी है, जो ए फील्ड के एक्सपर्ट है। ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। किसी कोई ट्रीटमेंट कोई और कर रहा है, राइट, आपको बोलेगा हाँ हरिद्वार जाके ले आओ, ये बाबा की फाकी ले आओ, 1000-1500 रुपये में, 2000 में। यदि सर वो इतना ही एक्सपर्ट होता तो हम हमारी आधी जिंदगी ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में बनाने क्यों लगा देते इतना? समझ रहे हैं आप सर? तो कहने का मतलब है अपने को ये कैंसर डेफिनेटली ट्रीटेबल है। कब? जब अर्ली डिटेक्शन होगा, एज सुन एज पॉसिबल प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा होगा। तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि ये काम मैं 20 साल, एटलीस्ट 20 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे ऐसे कई मरीज देखे जो अभी आज 10 साल, 15 साल, 20 साल से अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कुछ पेशेंट मेरे ऐसे थे जो अनमेरिड थे, उनके मैरिज हो गए, कैंसर मिट गया, मैरिज के बाद बच्चे भी हो गए, अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे। Why? The only one reason, early detection. तो early detection is extremely important. So आज से आपके दिमाग से ख्याल निकाल दो, हमारे दूसरा क्या प्रॉब्लम इंडिया में है कि हमको दया की भावना जाग जाती है, ओह बेचारे को कैंसर हो गया, अभी तो ये 6 महीने का घर आ गए, ये 6-12 महीने में चला जाएगा। तो हम बेचारे को इतना सारा नेगेटिविटी कर देते, तू तेरे दुनिया के सब काम पता दे, अभी तेरे पास बहुत टाइम नहीं है। डोंट ट्रीट देम इन दैट वे, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, राइट। इट्स लाइक अ स्टिग्मा। उसको ऐसा हमने आइसोलेट कर दिया, उससे साथ बोलना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, साथ में बात बनना करना बंद कर दिया, घूमने फिरने जाना बंद कर दिया। लेट हिम लीव द नॉर्मल लाइफ एज फार एज यू मेक देम कंफर्टेबल। प्रोबेबली दे नीड योर सिंपैथी, दे नीड योर प्रॉपर द असिस्टेंस। उनको आइसोलेट मत कर दो। आप नहीं पता चले तो एक्सपर्ट को पूछो ना, आप मेरे को फोन करो कि सर इसमें ऐसा है, क्या कर सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं कि नहीं साथ खा सकते, खा सकते हैं, आंसर इज खा सकते हैं। ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, ये कोविड की ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे कि भाई एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, फिर विश्व में हो गया। नहीं तो अभी तक मेरे को 5-10 हजार, 15 हजार कैंसर मेरे को खुद को हो जाने चाहिए। अभी 1 लाख पेशेंट ट्रीट किए मैंने तो 20 साल में। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फाइन। मेरा काम ही यही है, सुबह उठ के पहला कैंसर पेशेंट देखना, रात को सोने के टाइम कैंसर पेशेंट देखना। उनको मैं छूता हूँ, उनको एग्जामिन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे काउंसिल करता हूँ, उनकी बायोप्सी करता हूँ, सब करता हूँ। सो ये दिमाग से निकाल दे कि ये खाने पीने से, छूने से होता है। तो माय फर्स्ट टेक होम मैसेज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एक्सपर्ट, respected teachers, whosoever is listening me, cancer is treatable, absolutely yes, treatable. What is the
total mainly the goal of this lecture, why we organize this lecture, why I talk with your office and HR people for this awareness. What is the main advantage of awareness? Right? Create a cancer awareness and remove the stigma and fear attached to it. There are a lot of people, those who have stigma, हमने उसको बेचारे को स्टिग्मा यानी दाग, एक सोसाइटी में ऐसा होगा कि इसको कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो क्या है भैया, डायबिटीज हो गया, ऐसा कैंसर हो गया. डायबिटीज इज नॉट क्योरेबल, कैंसर इज क्योरेबल. डू यू नो दैट? डायबिटीज कभी लाइफ में मिटती नहीं है, कैंसर मिट जाती है. बट स्टिल वी आर व्हाट वी आर वरीड मोर फॉर विच डिजीज, डायबिटीज और कैंसर. वी आर वरीड अबाउट कैंसर. तो ये आपके फियर निकाल दो आप. कैंसर मिट सकती है, डायबिटीज नहीं मिट सकती. फिर भी हम डायबिटीज से नहीं डरते. जितने लोग डायबिटीज से मरते हैं, राइट, उससे कम लोग कैंसर में मरते हैं. फिर भी हम कैंसर से डरते हैं, जिससे कम मरते हैं. डायबिटीज घर घर में, उससे हम नहीं डरते. तो रिमूव द फोबिया, रिमूव द स्टिग्मा, help people recognize the early sign and symptoms. Why we are organizing these lectures? Objective of today's lecture is what? Cancer awareness program or lecture or session or webinar. I want to give you some ideas by which you and me together can detect the early sign and symptoms of cancer that I will discuss with you. Right? Enabling them to seek treatment at early stage. Early stage में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. हमको लोगों को एजुकेट करना है कि कैंसर का रिस्क फैक्टर हम कैसे कम करें. राइट? वो हमको लोगों को बताना है. जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद इम्प्लीमेंट या उसको डुप्लीकेट कर सकते हो आपकी फैमिली फ्रेंड्स में. राइट? आपको रेगुलर बताना है सबको कि भाई आपको रेगुलर चेकअप करना चाहिए. एज अप्रोप्रिएट कैंसर्स के स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए. वो आने वाले 5-10 मिनट में मैं बताता हूँ. राइट? एंड वी ऑल्सो टीच एंड गाइड द फीमेल, स्पेशली फीमेल. एक मैमोग्राम क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर है, वो सर्वाइकल कैंसर में पेप्समियर क्या है और उसकी वैक्सीन क्या है. तो आज मैं आपको ज्यादा कवर शायद नहीं कर पाऊंगा. इफ यू फील हैप्पी बाय माय लेक्चर, वी डेफिनेटली ऑर्गेनाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर एज पर योर कन्वीनियंट टाइम. It's awareness. I am not taking any single penny for charge, whether I take 1 lecture or 100 lectures for Knox. Don't worry, right? But I want you to educate. You all are educated and you can spread this awareness very fast than layman, right? तो आज मैं 2 कैंसर के बारे में बात ज्यादा करूंगा. एक ब्रेस्ट कैंसर है, यानी स्तन की कैंसर. आपकी जानकारी के लिए, ये फीमेल में होती है, बट ये मेल में भी हो सकती है. हमारे पास अभी 3-4 पेशेंट एट प्रेजेंट चल रहे जिनको हम मेल ब्रेस्ट कैंसर को कीमो दे रहे हैं. राइट? बट आमतौर पे 100 पेशेंट मैं देखता हूँ साल में, एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर के, तो इसमें 98-99 फीमेल होती है, 1 और 2% मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है. तो जिसको ब्रेस्ट है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो ब्रेस्ट फीमेल में भी है, मेल में भी है, तो दोनों को हो सकता है. बट आउट ऑफ 99% ये फीमेल में होता है, वेरी रेयरली इन अ मेल. और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, उसको हिंदी में हम गर्भाशय का मुख, जो गर्भाशय यानी यूट्रस होता है. आपको थोड़ा एनाटॉमी पता होगा डेफिनेटली, ऑब्वियसली. तो यूट्रस है, राइट? तो यूट्रस है, वो यूट्रस के नीचे एक पार्ट होता है. जैसे मान लो ये यूट्रस है, ये यूट्रस के नीचे एक पार्ट होता है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं. राइट? और ये साथ में 2 फैलोपियन ट्यूब होती है. थोड़ी एनाटॉमी बताता हूँ. इधर नीचे ओवरीज होती है. राइट? ये सर, ये जो यूट्रस खत्म होता है तब इससे एक ऑस जैसा होता है. राइट? उसके बाद में हियर नीचे से एक वजाइनल पार्ट लेडीज में चालू होता है. तो ये पोर्शन जो है राउंडेड, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स. सर्विक्स यानी उसको गर्भाशय का मुख भी बोलते हैं. तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है. यूट्रस का भी कैंसर है, हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का भी हो सकता है, ओवरी की हो सकता है, और हम सब एवरीडे देखते हैं, एवरीडे इसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं. बट ये 2 जो ऐसे कैंसर है जो इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, राइट, जो टॉप पे है. आप WHO के डेटा देखोगे या इंडियन कैंसर सोसाइटी जो ऑफिशियल बॉडी है कैंसर की, राइट, तो मैंने वहां से ही लिया है, कैंसर स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया, वहां से ही लिया है मैंने डेटा. राइट? तो ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होते. अदरवाइज आपकी नॉलेज के लिए, कैंसर मेल और फीमेल में हेड टू टो जितने भी ऑर्गन के नाम आपको आते हैं वहां सब हो सकता है. हेड टू टो सब. 2 चीज में कैंसर नहीं होता, एक हेयर का नहीं होता और एक नेल का नहीं होता, नाखून का और बाल का. ये इसके अलावा आप जितने भी ऑर्गन के नाम जानते हो, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी टिश्यू जानते हो, सबका कैंसर हो सकता है. राइट? बट इसमें सबसे ज्यादा कॉमन ब्रेस्ट एंड सर्विक्स है. और ब्यूटी ये है कि दोनों को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिससे सबसे ज्यादा केस होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा डेथ भी इसमें होती है. तो आई वांट टू एजुकेट टुडे स्पेशली फॉर ब्रेस्ट एंड सर्विक्स. कैंसर का क्या स्टैटिस्टिक है, कैंसर स्टैटिस्टिक इंडिया में, कि कैंसर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, 10 मिलियंस.
10 मिलियंस को थोड़ा इंप्रूव करके बोले तो 1 करोड़, 1 सीआर मीन्स 1 करोड़। तो साल में 2020 के अंदर 1 करोड़ लोग कैंसर से मर गए। सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, not a small number, no. 10 million, 1 million is 10 lakhs, 10 million is 100 this lakhs, means 1 crore. This is the big number. We want to reduce this number. How will gonna reduce this number? हम कैसे कम करेंगे? अवेयरनेस से, जानकारी से, अर्ली डिटेक्शन से हम कम करेंगे। तो ये सब कॉमन कैंसर है, राइट? ब्रेस्ट, लंग, कोलोन, रेक्टम, प्रोस्टेट, काफी सारे ये सब कॉमन है, राइट? ये डेटा क्या बोलता है कि अराउंड 1/3 ऑफ द डेथ, 1/3 ऑफ द डेथ यानी 1/3 यानी 3 में से 1, 1/3 यानी 3 में से 1, दैट इज कॉल्ड 1/3, राइट? 1/3 ऑफ द डेथ फ्रॉम कैंसर्स आर ड्यू टू, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, मेल फीमेल बोथ, राइट? क्या है 1/3 डेथ किसकी वजह से होते हैं? तो एक तो टॉबैको यूज। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल, जो लोग खाते हैं उनको पता है कौन खाता है नहीं खाता है, वी डोंट नीड टू आस्क ईच एंड एवरीबॉडी पर्सनली। टोबैको यूज कोई भी फॉर्म में करते हैं, आई humble request them, urge them, you are not alone in your family, you have somebody else, somebody behind your family, your wife, your father, your elderly father, mother, your kids, your responsibility. So tobacco is a major killer across the globe, major killer, is the major killer across the globe. So whatever the form you are using tobacco, it's a key। आप कोई भी किताब में, वर्ल्ड की कोई भी किताब खोल लो, उसके अंदर नंबर 1 कॉस्ट टोबैको मिलेगा। नहीं मिले तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, देखो सर इसमें नहीं लिखा है, गो एंड गूगल इट, डू इट सम मोर रिसर्च, बट इफ यू आर यूजिंग इट, इट्स अ मेजर किलर। You are not killing yourself, you are killing a lot of people around you, like your parents, your mother, your father, right? Your family and friends, right? So you are alone as a one person, but you are like a, you are help for thousands of people around you, right? सो टॉबैको यदि आप खाते तो बंद कर दो। हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी उसको हम ओबेसिटी भी बोलते हैं। अल्कोहल कंजप्शन, राइट? लो फ्रूट, राइट? तो फ्रूट नहीं खाते हम लोग, वेजिटेबल इंटेक बहुत कम करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी तो हम शायद भूल ही गए हैं। आमतौर पे हम फिजिकल एक्टिविटी, कॉर्पोरेट लाइफ, स्ट्रेस, दौड़ा दौड़ी, सुबह 9 बजे पंचिंग, ये वो, राइट? तो ये मैंने भी 20 साल तक किया, ऐसा नहीं मैंने आपने किया और मैंने नहीं किया, राइट? बट वी हैव टू इम्प्रूव अवर लाइफस्टाइल। ये करने से हमारा रिस्क कैंसर होने का काफी हद तक कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक। कौन कौन से कैंसर मेल फीमेल में कॉमन है? तो मेल के अंदर है लीप ओरल कैविटी। वाई लीप ओरल कैविटी? क्योंकि मेल ज्यादा तमाकू, गुटखा, मावा, मसाला, खैनी, माणिकचंद, आरएमडी, राइट, जुबा केसरी, ब्ला ब्ला, हंसी आती होगी शायद मेरे को आपकी मेरी बात से, पर दिस इज ऑल कैन कॉज कैंसर, दिस ऑल कैन कॉज कैंसर, राइट? तो मेल के अंदर ओरल कैविटी के ज्यादा, स्पेशली हमारे पार्ट में, जैसे गुजरात में हमारा एक बेल्ट है सौराष्ट्र, राइट? तो वहाँ घर घर में लोग मावा मसाला पूरे दिन, कुछ कुछ जनाब तो ऐसे है जो रात को भर के सो जाते पूरे सुबह तक, राइट? तो वो लोग जल्दी मेरे मेरे पास वो लोग जल्दी आते हैं, राइट ना? वो मेरे पास जल्दी आते हैं क्योंकि उनको, जिसको 20 साल खाने के बाद होना चाहिए वो 10 साल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सुबह तो खाते ही खाते, पूरी नाइट एंजॉय करते, दोनों बाजू भरा के सो जाते, 135, 235, 335। पता नहीं है मेरे को कितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं, पर मैं सुनता हूँ ना। तो मेल में ये होते हैं। लंग कैंसर कॉमन है। स्मोकिंग इज अगेन, टोबैको इज मेजर लीडर, लीडिंग कॉज। स्टोमक कैंसर, कोलोरेक्टल यानी बड़ी आंत का, यानी कोलोन, यू नो कोलोन, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलोन, सो कोलोन। इसोफेगस यानी अन्न या फूड पाइप, सेम फीमेल में आप देखोगे तो ब्रेस्ट, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। सर्विक्स इज ऑल्सो कॉमन, बट इंडिया में अभी ओरल कैविटी का भी बढ़ रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज, राइट? मेट्रो सिटीज, दिल्ली, नोएडा, right? Then Mumbai, Calcutta, Madras, Hyderabad, Bengaluru, this all big short cities, Ahmedabad, metro cities. Now female are also enjoying smoking. They are also taking tobaccos. So this is again increasing in the female. Let me tell you, and we are treating it, we are seeing it. It's not just written in the book. ऐसा नहीं किताब में ही लिखा, मैं तो देखता हूँ हर रोज, right? Cervical cancer, lung cancer, gastric cancer. So these are the few leading cancer in male and female. Absolutely important style. मैं आपको ये पूरा, मैंने वंदना मैडम जो है एचआर में, आई थिंक उनको मैंने पूरा ये पावर पॉइंट शेयर कर दिया है, आप उनसे ले सकते हैं पूरा का पूरा, आई डोंट माइंड, राइट? आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, खाली इसको अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसी स्लाइड है, हर आदमी को ये स्लाइड अच्छी तरह देखनी है।
फोटो लेना है तो ले सकते हैं, पूरा पावर पॉइंट वंदना मैडम के पास है, राइट। तो ये इसमें से आपको जो आपको लगता है कि ये मेरे को लागू पड़ता है या ये मेरे को रिलेट करता है, वो चीज आपको बंद कर देनी है। ऐसा नहीं है कि हर हर लोग तोबे को खाते हैं, जो नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, जो खाते हैं उनको बंद करना चाहिए। यदि आप ये लिस्ट को देख लोगे और ये लिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको 99% कैंसर होने की संभावना नहींवत है या नहीं होगा। टोबैको इज इन एनी फॉर्म का मतलब क्या हुआ, कोई भी फॉर्म में। कुछ आप बीड़ी में लेते हैं, सिगरेट में लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ घसते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। अभी तो ई सिगरेट आ गया है लड़कियों में, ई सिगरेट, धुआं नहीं निकलता, एक ई सिगरेट आता है, तो आप जरा देखना। तो ये जो हमको टोबैको कोई भी फॉर्म में अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अनहेल्दी डाइट, इसके लिए मैं और 2 मिनट बोलूंगा। जोमेटो वेरी पॉपुलर, स्विगी एक्सट्रीमली पॉपुलर, मैकडी उससे भी ज्यादा, विलियम जोन्स, हो सकता है किसी के मुंह में पानी भी आ गया होगा, किसी के मुंह में पानी भी आ गया होगा, हो सकता है। यू कैन इंटरेक्ट विद मी, आई एम हैप्पी, डोंट वरी। ये सब चीज खाओ, ऐसा नहीं आप मत खाओ। मैं भी कभी खाता हूँ, मेरे को भी शौक होता है, राइट। बट अभी ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाना है, लाइफस्टाइल नहीं बनाना है। हमारे दादा, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने ये चारों में से किसी को नहीं खाया और 90 साल जिए। आप पूछ लो, आपके पेरेंट्स को पूछ लो, आप आपके पेरेंट्स को पूछ लो कि दादा कितना साल जिएगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ हर लोगों के दादा मिनिमम 80-90 साल जिए होंगे। दादा यानी फादर के फादर या मदर के फादर, पूछ लो आप। ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स कितना जिए, आप पूछ लो आराम से घर पे। आई कैन गारंटी यू मिनिमम 80 ईयर्स जिए होंगे। और 80 ईयर्स जिए कैसे, अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जब तक जिए, जिए, अच्छा खाया, घूमे फिरे, डॉक्टर को कम मिले, एंजॉय किया, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप मर्सिडीज बेंज में है पर आपको बाहर निकालने के लिए 4 लोगों को बुलाना पड़ता है मर्सिडीज बेंज में से, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। आप खाली बाहर से दिखावे के लिए हाँ मर्सिडीज में जाता है, पर आपको बाहर निकलने में, आपको मोबिलाइज करने में, आपको कहीं ले जाने में 4 लोगों की हेल्प चाहिए, दैट इज नॉट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स यू कैन एंजॉय वट एवर यू कैन थिंक, वट एवर यू कैन, आई मीन वांट टू ईट, यू कैन ईट, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ ना। आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया पर डॉक्टर बोले सर अभी डायबिटीज 400 चल रहा है, मीठी चीज मत खाना, सर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, सॉल्ट मत लेना, सर आपके जोड़ों घिस घिस गए, आप सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा घूमने नहीं जा सकते, सर आपको एकदम आंखों की रोशनी मोतिया आ गया है, आप कुछ शाम को दिखेगा नहीं। क्या लगता है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है? क्या करोगे आप आपके पैसे का, क्या करोगे जब आप घूम नहीं फिर सकते, देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, कूद नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो करोगे क्या? Improve your quality of life, that is quality of life. So concentrate on your life, I'm talking about your life, not my life. So be more serious about yourself, your family, your friends, right? तो आपको अनहेल्दी डाइट बंद कर देना है, कचर पट्टी खाने का, रोड साइड खाने का, हर तीसरे दिन पकौड़ी खाने का, हर चौथे दिन जोमेटो मंगाने का बंद कर दो। आप दाल भात साग रोटी सब्जी, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट जूस लो। और दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी। 90% लोगों को ऐसी गैर मान्यता है कि मैं तो पतला हूं, मेरे को तो नख में भी रोग नहीं है, मैं तो अट्ठा कट्ठा हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं अभी हिमालय चढ़ सकता हूँ। ये लोग भी मैंने आईसीयू में देखे हैं। ये लोगों को मैं हर रोज एक बार पेपर में देखता हूँ कि 40 साल का, 25 साल का, 30 साल का लड़का डांस कर रहा था, रात को मैरिज में डांस कर रहा था, सुबह कोलेप्स हो गया। अरे भाई 25 साल का कैसे कोलेप्स हो गया? अभी हमारे गुजरात में कार्डियोलॉजिस्ट कोलेप्स हो गया, कैन यू इमेजिन? जिसने 10,000 एंजियोग्राफी की, कार्डियोलॉजिस्ट खुद कोलैप्स हो गया, मर गया। बिलीव यू गो एंड गूगल इट, कैसे हो गया? फिजिकल एक्टिविटीज एब्सोल्युटली। सो आज जितने भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे को लोग सुन रहे, नॉक्स, आउट ऑफ नॉक्स, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, जहां से भी लिंक भेजा है आपने, आप एक हैबिट डाल दो। जो लोग जीरो फिजिकल एक्टिविटी है वो 10 मिनट से चालू करें। जो 10 मिनट ऑलरेडी कर रहे हो उसको बढ़ा के 20 मिनट करे। जो 20 मिनट से कर रहे हैं वो 30 मिनट पर डे करे। मिनिमम गोल आपका 30 मिनट तक रीच करना है। ये मेरा कहना नहीं है, WHO का ऐसा कहना है कि 150 मिनट्स पर वीक। कितने? 150 मिनट्स पर वीक। तो 150 मिनट्स को आप कैसे डिवाइड करोगे? आप ऐसा कर सकते हैं कि 30 मिनट, राइट, आप ऐसा कर सकते हैं कि 50 मिनट्स 3 दिन तक कर सकते, तो भी 150 हो गया। समझ गए आप 30 मिनट, राइट,
5 दिन तक कर सकते हो तो भी 150 मिनट हो गया। आपके पास इतना टाइम नहीं है, 20 to 25 मिनट एवरी डे कर दिया तो भी हो गया आपके। तो डिपेंड्स ऑन योर टाइम स्केड्यूल। ट्राई टू रीच दिस गोल। क्यों ये गोल को रीच करना है? उसकी वजह से आपको हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, जॉइंट पेन, कैंसर, सिरोसिस, सर्कुलेशन, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, जितने भी नाम बोल दो आपको आते हैं, वो सबका रिस्क कम हो जाएगा। और आराम से सोचना कि आपके दादा क्यों अच्छा जिए थे 80-90 साल। उसका एक ही रीजन है, सुबह खेत में जाते थे, खेत में आते थे, कोई व्हीकल नहीं था, कोई होंडा नहीं थी, कोई बाइक नहीं थी, कोई मर्सिडीज नहीं थी, चल के जाने का, 5 किलोमीटर चल के आने का, अच्छा खाना खाने का, सो जाने का। दिस इज लाइफस्टाइल। उनकी इतनी सिंपल लाइफस्टाइल थी, राइट? उसकी वजह से वो 80-90 साल आराम से जीते थे। आपने कभी सोचा कि आपके दादा को हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई, आपके दादा को एकदम हाई फाई कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई? कुछ जरूरत नहीं पड़ी। जब हुआ ही नहीं तो जरूरत क्यों पड़ेगी ना। अब हम लोग इतने सारे क्यों बढ़ गए? क्योंकि मरीज इतने सारे हो गए तो हमको बनना पड़ा। समझ रहे हैं ना? अभी घर घर में कैंसर है तो ट्रीट कौन करना पड़ेगा? तो पूरी ब्रांच ही खुल गई लास्ट 50 साल में, हिमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। पहले 50 साल पहले नहीं था, राइट? आप हो गए ज्यादा, जीपी हो गए, फिजिशियन हो गए, हो गया भाई। अब इतने सारे घर घर में कैंसर है तो वो पहुंच नहीं सकते, तो थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। अभी तो एक एक चीज के डॉक्टर हो गए, एक एक चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग चीज के। अभी कैंसर में भी आपको थोड़ा डिटेल बताऊं तो अभी ब्रेस्ट के कैंसर के डॉक्टर अलग, बस वो खाली ब्रेस्ट कैंसर ही देखेंगे। सर्विक्स के अलग, लंग कैंसर अलग, फेफड़े के अलग, मुंह के अलग, बोन कैंसर के अलग। उसमें भी अभी डाइवर्जन हो गया, अलग 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 अलग। कैंसर में भी अभी उसमें भी 500 डॉक्टर अलग, फैकल्टीज हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे मरीज है, तो आपको टोबे को अवॉइड करना है डेफिनेटली। मेरा टेक होम मैसेज ये है, राइट? आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, राइट? आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करनी है। कुछ वायरस की वजह से भी कैंसर होता है, वो मैं बताऊंगा। ये एज के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, आप एज को रोक नहीं सकते, राइट? तो ये एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे कैंसर की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। 20 साल की उम्र में कैंसर की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो आप 80 साल जीते, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। तो एज इज अ रिस्क फैक्टर। सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट होने से स्किन कैंसर, बेजल सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा का रिस्क बढ़ता है। और ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी मोटापा, हिंदी में मोटापा, इंग्लिश में ओबेसिटी। तो जो लोगों का वजन उनकी एज के हिसाब से ज्यादा है, उनको एब्सोल्युटली वेट लॉस करने का इंटेंशनल एफर्ट करना चाहिए, राइट? वो आपके लिए अच्छा है। ये तो सिर्फ कैंसर है, ऐसा आप डायबिटीज पढ़ोगे तो उसमें भी ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है। आप जॉइंट प्रॉब्लम पढ़ोगे तो उसमें भी ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है। आप कोलोन कैंसर का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी ओबेसिटी है। तो खाली कैंसर नहीं, कैंसर के अलावा नॉन कैंसरस कंडीशन में भी आपको बहुत सारा फायदा होगा यदि आपने आपका 5 किलो वजन भी 6 महीने के अंदर गोल कर दिया कि भाई आज है 18 मार्च, मैं 18 जुलाई, अप्रैल, अगस्त तक बरोबर मेरा 5 किलो कम कर दूंगी या कर दूंगा, राइट? तो आपको काफी सारे डिजीज से प्रोटेक्शन मिल सकता है। सिम्टम्स हमने जान लिया कि भाई सिम क्या होता है, कैसे होता है, राइट? पर आपको कैसे पता चलेगा? आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको कब ऐसा लगेगा हाँ अभी मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो व्हेन यू सपोज टू understand yourself that at what time I should reach to the doctor, and these are the all sign symptoms, right? In our language, medical language, symptoms and signs. तो ब्लीडिंग, आपके बॉडी में से कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, यदि माउथ में होती है, कफ में होती है तो लंग कैंसर हो सकता है, वॉमिट में से हो सकती है तो स्टमक इसोफेगस कैंसर हो सकता है, स्टूल में से ब्लीडिंग होता है तो कोलोन कैंसर हो सकता है, यूरिन में से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर का, वजाइना से हो सकता है ब्लीडिंग ज्यादा आता है, फीमेल है, राइट? 5 दिन का पीरियड आना चाहिए। अब ये 5 दिन का पीरियड है, वो 10 दिन चले तो थोड़ा सा ब्लीडिंग आता था, अभी एक्सट्रीमली हैवी ब्लीडिंग चले तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ भाई ब्लीडिंग तो आता है ना भाई, अभी फीमेल है तो आता है। हाँ भाई आता है, बात सही है, पर पहले 5 दिन आता था, अभी 15 दिन तक आता है। बंदी नहीं हुआ, आधा आधा महीना चालू रहा, तो दैट इज समथिंग एबनॉर्मल। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? और ब्रेस्ट निपल से होता है, तो निपल से होता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। तो ये सब तो यानी सिंपल लेमन टर्म में कहीं से भी बॉडी में से ब्लीडिंग होती है तो आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको जाके डॉक्टर को बताना है। आपको खुद को डॉक्टर ही बनना है। हम क्या मानते हैं, मैं सुपर डुपर प्रोफेसर हूं, मैं सुपर डुपर कोच हूं, मैं सुपर डुपर ये हूं। आप है, आई हैव नो डाउट,
You are expert, you are more brilliant than me, but you are not a doctor, right? If you are a doctor, I am happy. You go and treat yourself. That's fine. You are a doctor, you are qualified. But if you are not, then don't play with yourself. Go and check it with the doctor, right? तो शरीर में से कहीं से भी ब्लीडिंग होना आपको एक अलार्मिंग साइन है। ये अलार्मिंग साइंस है सब। अलार्मिंग यानी डेंजरस साइन है। ब्लीडिंग होना सिंपल साइन नहीं है। शरीर में कहीं लम्स और बम्प होना, शरीर में कहीं गठान होना, कहीं बड़ी गठान हो जाना, जैसे कॉमनली ब्रेस्ट में गठान हुई तो ब्रेस्ट कैंसर, नेक में हुई, एक्जिला में, पेट के अंदर हुई, एब्डोमेन ग्रॉइन में हुई, तो ये कैंसर हो सकती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस यानी आवाज थोड़ी बदल जाना पूरी, उसको हम गुजराती में घोघरो आवाज बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ा हॉर्स हो जाना, हॉर्स के जैसा एकदम, राइट? जो स्मूथ फ्लो होना चाहिए वॉइस का नहीं, और चेंज ऑफ वॉइस बोलता है कि सर मेरी 2-3 महीने से आवाज बदल गई है। इट्स अ लैरेंजियल कैंसर। आपने साइंस के स्टूडेंट है ज्यादातर, तो लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स का कैंसर होता है, वो कॉमन है, ये इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। हेड एंड नेक कैंसर में वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, एपिग्लोटिस, इट्स वेरी कॉमन। वी आर सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट्स इन माय रीजन, राइट? तो आवाज बदल जाना, तो उसको लाइटली मत लो, हाँ आवाज बदल गई अभी होगा चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं, राइट? और ये सब सिम्टम्स है ना, इन जनरल 2 से 3 महीने तक ये सिम्टम्स रहते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो एब्सोल्युटली 110% आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि ब्लीडिंग कोई अलग बीमारी की वजह से भी हो, जैसे आपको कफ में ब्लीडिंग कर रहा है तो हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है न्यूमोनिया हो सकता है कुछ ब्लड का प्रॉब्लम हो, प्लेटलेट कम हो गए हो, दूसरा भी हो सकता है। बट यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई इसको क्या है, राइट? नॉट द योरसेल्फ यू डिसाइड, हाँ भाई चलो ये तो होता है, जाने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ऐसा कभी भी किसी को झूठा भरोसा दिलाओ ही मत ना। बढ़ जाएगा तो बेचारा वो अच्छी जगह आपको ही गालियां देगा एंड ऑफ द डे कि अरे मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा था, उन्होंने ही मना किया, राइट? मैं तो नहीं तो मैंने मेरा मन बना लिया था कि आई नीड टू सी द डॉक्टर, बट माय सो एंड सो क्लोज फ्रेंड रिफ्यूज मी टू गो टू द डॉक्टर। तो ऐसा मत करो ना। अर्ली चेकअप करा के उसका डायग्नोस करा दो, खत्म हो गई बात। तो ब्लीडिंग होना, लंप होना, वॉइस चेंज होना, डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ओडाइनोफेजिया, अगेन मेडिकल टर्म, पेनफुल स्वेलोइंग, इसका लिटरल मीनिंग होता है पेनफुल स्वेलोइंग। जब आप स्वेलो करते हो, खाना खाते हो तो पेन होता है, जब निगलते हो तो अटकता है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो अटकता है या डिफिकल्ट स्वेलिंग है तो डिस्फेजिया, पेनफुल स्वेलिंग है तो ओडाइनोफेजिया। ये इसोफेगस के कैंसर के सिम्टम्स है। चेंज इन बॉवेल हैबिट, बॉवेल यानी हमारे जो स्टूल पास करते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन बार बार हो जाना, बार बार डायरिया हो जाना, वेट लॉस हो जाना, इट कुड बी अ कोलोन कैंसर। एंड ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड अनएक्सप्लेन्ड फीवर। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मीन्स क्या? आप बोलते हो सर, कुछ मरीज में ऐसे देखता हूँ, सर मैं तो बहुत खाता हूँ, 4 बार खाता हूँ, 5 बार खाता हूँ, सब खाता हूँ, दूध पीता हूँ, एकदम तगड़ा अच्छा खाना खाता हूँ, फिर भी वजन कम हो रहा है सर। इट कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने बहुत फीवर की दवाई देख ली, मैंने बहुत चेस्ट एक्सरे करा लिए, सीटी स्कैन करा लिए, पैट स्कैन करा लिए, बुखार का कोई कारण ही नहीं मिलता सर मेरा। It could be a cancer. So unexplained weight loss and fever, these all symptoms, if it is more than 2 to 3 months in your body, your family, your friend, near and dear, go and check it with some good doctors. It could be, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये सब होगा तो कैंसर ही है, ऐसा मैं नहीं बोला। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो हाउ डू यू रूल आउट द पॉसिबिलिटी? एक्सपर्ट कैन रूल आउट द पॉसिबिलिटी ना। एंड हु इज द एक्सपर्ट? एक्सपर्ट इज द इज फील्ड, वो फील्ड का बंदा है, जो फिजिशियन है या ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो है वो कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, हमको अर्ली डायग्नोसिस क्यों इतना मैं गला फाड़ रहा हूँ? अर्ली डायग्नोसिस करने से क्या होगा? बेस्ट आउटकम मिलेगा, यस मिलेगा। क्योंकि पहले और दूसरे स्टेज में मैंने पहली स्लाइड चालू किया था, तो उसमें मैं क्या बताया था कि भाई 80% लोग जो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो डायग्नोस होते हैं, राइट, 80% लोग वो तीसरे और चौथे स्टेज में होते हैं। 80% लोग, तो बहुत अच्छा नहीं है, बुरा नंबर है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस नंबर, राइट? कि भाई आपको 80% को हमने यदि अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो क्या होगा? अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो उसका आउटकम अच्छा होगा, उसका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि 6 महीने की ट्रीटमेंट 2 महीने में खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको पहली स्टेज की थी तो उसको कम ट्रीटमेंट लगी, तो कम ट्रीटमेंट लगी तो कम कंसल्टेशन हुए, कम एडमिट हुआ तो कम पैसे लगे, तो लेस कॉस्ट, बेस्ट आउटकम, लेस ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट, कम ट्रीटमेंट कम साइड इफेक्ट, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी कम होगा। आप किसी को बोलोगे 12 महीने तक एवरी मंथ हॉस्पिटल में जाना है, और आप किसी को बोलोगे बस सर 1 या 2 बार ही जाना है, तो 12 महीने वाला बेचारा ऐसे ही बीमार ज्यादा हो जाएगा, साइकोलॉजिकली सोच के कि ऐसा मेरे को क्या होगा कि 12 महीने तक मेरे को जाना पड़ेगा। एंड सेव्स लाइव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेव्स लाइफ। इट डज नॉट जस्ट अर्ली डिटेक्ट,
but it saves life. That is the goal of awareness. If you detect early any disease, not just cancer, and if you treat promptly, treat by trained professional, it saves the life. It saves the life, believe me. I've seen hundreds and thousands of patients in my career, right? Those who are cured of the cancer forever. I have plenty full of my video on YouTube. You go and check it. Not my word, patient's own word, their testimonials, right? So this is one chart I will share with you, not much going in detail. This is screening. And again, we heard a name screening for years and years, but sometimes we don't have actual clarity that what does the screening means. Screening का मतलब क्या है? Screening का मतलब ये है कि checking for cancer in a person who does not have any symptoms of the disease. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको कैंसर नहीं है, उसके पहले आप उसको बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहते हो और उसके लिए कुछ टेस्ट करवाते हो जैसे मैमोग्राम और पेप स्मीयर, उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। मेरी मदर को कोई तकलीफ नहीं है, पर फिर भी मैं मदर को आज बोलूंगा मम्मी चलो हम जाते हैं, हम एक मैमोग्राम और पेप स्मीयर करा के आते हैं। ना मदर को ब्रेस्ट में लंप है, ना निप्पल से ब्लीडिंग हो रहा है, ना वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, ना पीरियड आ रहा है, फिर भी मैं जाता हूँ चेक करवाता हूँ। क्यों? यदि कुछ होगा तो पता चलेगा। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, राइट? तो अगेन द सेम एडवांटेज व्हाट आई टोल्ड यू, अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, लेस कॉस्ट, लेस साइड इफेक्ट एंड सर्वाइवल। एंड लास्ट कपल ऑफ स्लाइड, स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग तो दो स्क्रीनिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर एक कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने आपको बात की, तो सर्वाइकल कैंसर, राइट? तो सर्विक्स जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी ड्रॉ करके, फिर भी मैं आपको एक बार स्लाइड है मेरे पास तो मैं ये बता सकता हूँ इधर आपको। तो ये फीमेल है, ये फीमेल्स लेग है, राइट? ये दिस आर द टू फीमेल्स, ये पिक्चर है, राइट? ये वजाइनल पार्ट से उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डाला है, राइट? और ये पूरा यूट्रस है मेरा जहाँ कर्सर पेन जा रही है, और उसके बॉटम लाइन ये जो राउंड मैंने ड्रॉ किया वो सर्विक्स है। तो क्या करते कि ये ऐसे वजाइनल पार्ट से डाला, एक ईयर स्वॉब होता है, ऐसा एक स्वॉब है, राइट? ये यूट्रस का लोअर पार्ट है और ये पार्ट सर्विक्स है पूरा। तो सर्विक्स से लिया उन्होंने और उनको स्लाइड पे बिछा के, जैसे हम पेरिफेरल स्मीयर ब्लड में देखते हैं, वो स्प्रेड करके उसके सेल ले लिए और सेल को माइक्रोस्कोप में देख के उसका डायग्नोसिस कर दिया। दैट्स इट, इट इज वेरी सिंपल। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। आप जाओ आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलो, आप उनको बताओ कि सर मेरे को पैप स्मीयर करवाना है, वो 5 मिनट के अंदर आपको पैप स्मीयर करके घर भेज देगा। 5 मिनट के अंदर आपको जाना है, लेटना है, वो वजाइनल पार्ट थोड़ा एक्सपोज करके स्वab डाल के स्वab लेके भेज देगा। दैट्स इट, दिस इज व्हाट पैप स्मीयर। इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आपको एडमिट करेंगे, ब्लीडिंग होगा, टांके लेंगे, राइट? आपको 24 घंटे एडमिट कर देंगे, बहुत सारे भारी भरकम इंजेक्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं। गए आए, दैट्स इट, गए आए, दैट्स इट। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर इज डन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में ये पैप स्मीयर लोग करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में बाय डिफॉल्ट करते, इसलिए वहां पहले और दूसरे स्टेज में पकड़ लेते हैं। इसका ब्यूटी ये है, सीए मीन्स कैंसर बोलते हैं, कैंसर को हम शॉर्ट में सीए बोलते हैं। तो सीए सर्विक्स यानी कैंसर सर्विक्स, कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल। ब्यूटी इज व्हाट? प्रिवेंटेबल, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। हाईली क्योरेबल, ऑलमोस्ट 100% क्योर है उसका। देखो अभी वर्ल्ड में ऐसा एक कैंसर मेरे को दिखा दो सर और मैडम के जो 100% क्योरेबल हो। आप लिटरेचर ढूंढो, कौन सा कैंसर 100% क्योरेबल है? सर्विक्स, उसके अलावा एक भी नहीं पूरे वर्ल्ड में। ढूंढो, मिले तो मिल भेजना लिटरेचर। अब जो कैंसर 100% मिट सकती है उसके लिए हमको कोई पड़ी नहीं है, और जो नहीं मिट सकती है उसके पीछे हम भाग भाग करते हैं। तो पैप स्मीयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कौन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर ये है, 21 से 65 साल की, तो मेरे हिसाब से लेक्चर में जितनी भी लड़कियां बैठी है होपफुली वो 21 से 65 के बीच की होगी। तो आपको घर जाके आपके गायनेकोलॉजिस्ट को पूछ के उससे बोलना है कि मेरे को पैप स्मीयर करवाना है, और वो पैप स्मीयर कर देगा। रिपीट कब करना है? 3 साल के बाद। 2 मार्च 2024 में हमने आज करवाई ये महीने में, तो मार्च 2027 में करानी, फिर मार्च 2030 में करानी है, फिर मार्च 2033 में करानी है। यानी हर 3 साल में सिर्फ एक बार करानी है, एवरी ईयर नहीं करानी है। 5 मिनट की प्रोसीजर है, दूसरे तीसरे चौथे दिन रिजल्ट आ जाता है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, पेन इसमें जरा भी होता नहीं है। पर हम कहाँ जानते नहीं है, जिसको लैक ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं, और कहाँ तो हम उसको जानते हैं पर हम करना नहीं चाहते। अभी किसी ने मेरे जैसे अच्छी तरह शायद बताया भी नहीं हो, तो हम उसको
अच्छी तरह ये नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, राइट? इट कैन डू इन ऑफिस इन अ फ्यू मिनट्स, नो पेनफुल, वैक्सीन इज अवेलेबल। तो दो ब्यूटीफुल चीज है सर्वाइकल कैंसर के लिए। एक तो इजी टेस्ट है, उसको अर्ली डिटेक्ट करने का इजी टेस्ट है जिसको हम पैप्समियर बोलते हैं। और उससे भी बड़ी चीज मेरे को ये लगती है वैक्सीन है, जिसका काफी सारी फीमेल को, महिला को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई वैक्सीन है जिससे हम पूरे कैंसर के सामने प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपके गायनेकोलॉजिस्ट को पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरा नंबर रखना, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा, वैक्सीन का नाम बता दूंगा, जितने भी प्रॉब्लम आपके सब टेलीफोनिकली सॉल्व कर दूंगा। वैक्सीन इज अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया, कहीं पे भी मिलती है। किसको लगानी चाहिए? आइडियली 13 to 26। उसका मतलब ये हुआ कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई, उसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। यानी 13 एज to 26 में, ऑब्वियसली 13 पे इंडिया में नहीं होती, पर फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड में 5वीं, 6ठी, 7वीं या 10वीं कक्षा तक फीमेल कई बार सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, तो वहाँ थोड़ी अर्ली लगाते हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो स्कूल में 5वीं कक्षा के बाद में, यानी 10 साल 12 साल के बाद वो लगा देते थे, राइट? पर अप टू 26 तक एब्सोल्युटली दे सकते हैं। और एक चीज, कुछ महिला पुल देख सर, मेरे को तो एक लड़की है, दो लड़की है, दो लड़के हैं, अभी मेरे को लगानी चाहिए कि नहीं? मेरी एज 30 है, 35 है, 40 है, 45 है। तो आंसर अगेन है यस, लगानी चाहिए। हो सकता है उसका फायदा थोड़ा कम होगा, पर होगा जरूर, 100%। समझ गए? पर दिस इज द बेस्ट एज, इसमें प्रोटेक्शन मैक्सिमम मिलेगा 13 to 26। तो मान लो आपने नहीं लगाई, आप लगाना नहीं चाहते, तो आप आपकी डॉटर को तो दे ही सकते हैं 100%, क्योंकि वो तो 13 to 26 के बीच की है। 100% आई नो दैट। इफ यू आर लेस देन, इफ यू आर इन बिटवीन, से आपकी उम्र अभी जो जितनी भी महिलाएं बैठी है उनकी एज 30 से 50 के बीच में है, और आपकी शादी हुई है, तो आपके बच्चे की उम्र इतनी होगी 13 से 26 तक, तो आप दे सकते हैं, सिंपल, राइट? तो इसके 3 डोज होते हैं, वो आपके गायनेक भी समझा देंगे। आप भी थोड़ा पढ़ना जाके वैक्सीन के लिए, कुछ भी क्वेरी की जरूरत है। ज्यादा लंबा नहीं हो जाए लेक्चर, इसलिए मैं वो डिटेल्ड वैक्सीनेशन में नहीं जाता हूँ, पर मैंने आपको बता दिया सर्वाइकल कैंसर का पैप्समियर कराना चाहिए, 21 से 65 में कराना चाहिए, हर 3 साल पे कराना चाहिए, और वैक्सीन अवेलेबल है। दैट्स इट। सो दिस इज माई टेक होम मैसेज। और ये देखा, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये दो हाथ दिख रहे डॉक्टर के, और उन्होंने एक वल्सेलम या स्पेक्यूलम करके इंस्ट्रूमेंट डाला है, सर्विक्स को फिक्स किया है, राइट? और वहां से एक स्वॉप स्टिक दिख रही है आपको ब्राउन कलर की, जो सर्विक्स के हेड के ऊपर से, उसके माउथ के ऊपर से एक सैंपल ले रहे। दिस इज पैप्समियर। एंड लास्ट इज मेमोग्राम। मेमो मीन्स ब्रेस्ट, ग्राम यानी फोटोग्राफ, तो ब्रेस्ट का फोटो लेना उसको मेमोग्राम बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप की एक्सरे होती है, वो एक्सरे में हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर, मेमोग्राम के अंदर, राइट, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये मेमोग्राम पहले मैं आपको एक दिखा देना चाहता हूँ। ये एक मशीन है, सिंपल है। ये एक ब्लेड है, ब्लेड यानी कट हो जाए ऐसी ब्लेड नहीं है, ये प्लेट है, सॉरी, बेटर वर्ड इज प्लेट। एक ये प्लेट है जो ब्रेस्ट के ऊपर रखते हैं, एक दूसरी ये प्लेट है जिसके ऊपर ब्रेस्ट को हम रेस्ट करते हैं, राइट? तो ये दोनों प्लेट के बीच में, राइट, ये ब्रेस्ट है पूरा, ये ब्रेस्ट है, राइट, ये दूसरा ब्रेस्ट है, राइट? तो ब्रेस्ट को, दोनों ब्रेस्ट का हम एक्सरे लेते हैं 1 by 1, राइट ब्रेस्ट, लेफ्ट ब्रेस्ट, ऐसे। तो उसमें एक सिंपल प्लेट होती है, उसके बीच में रखना होता है ब्रेस्ट को, राइट? और उसकी एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल व्यू, यानी ऊपर से नीचे एक रेस पास करते हैं, और एक लेटरल वॉल में ऐसे रेस पास करते हैं, जिससे पूरे ब्रेस्ट की सभी कॉर्नर की एक पिक्चर आ जाती है। और ये पिक्चर के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि भाई किसी को छोटे से छोटी भी गठान हो, जैसे 0.5 सेंटीमीटर की, इतनी छोटी 0.5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी, जो आपको, हम लोग भी पता नहीं कर सकते ना, पाल्पेशन से भी नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? तो ये एक ऐसी एक्सीलेंट टेस्ट है जिससे हम स्टेज ब्रेस्ट को, राइट, ब्रेस्ट कैंसर को वेरी वेरी अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, यूरोप में भी किया, कनाडा में भी किया, तो वहां पे ये रेगुलर मैंडेटरी है प्रोग्राम। हर फीमेल को 40 साल के बाद, हर 1 या 2 साल के बाद, आपको जब ड्यूटी पे आना है तो आपको मेमोग्राम करा के ही आना है। आप जब तक नहीं कराओगे तो बोलेगा भाई आप ड्यूटी नहीं कर सकते, मेमोग्राम करा के आओ तभी आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो ऐसा कंपलसरी होता तो कितना अच्छा था, पर हमारे वहाँ कुछ कंपलसरी नहीं है, कराना है कराओ, नहीं कराना है कुछ नहीं कराओ। तो हम पान बीड़ी तम्बाकू में और एक बार होटल जाने में, घूमने फिरने में 5,000 खर्च कर देंगे फैमिली के साथ,
पर 1500-1000 रुपए का मेमोग्राम 1 या 2 साल में एक बार नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड सेट नहीं है। तो आज से माइंड सेट कर लो, राइट? हर फीमेल को 40 साल की उम्र के बाद साल में 1 या मैक्सिमम 2 साल में 1 बार, एवरी ईयर करे तो अच्छा है, नहीं करे तो 40 साल की उम्र के बाद 1 साल में करे तो बढ़िया है, पर एटलीस्ट 1 साल नहीं करे तो हर 2 साल पे तो करना चाहिए। ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है, राइट? ये मैंने मशीन बताया, एक स्पेशल मेमोग्राम बाय मशीन जो मैंने आपको दिखाई 40 साल के बाद हर 1 से 2 साल में करनी होती है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये टेस्ट हमको क्यों करनी है? भई मेमोग्राम क्यों करनी है? तो मेमोग्राम करने से हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्ट, और मैंने आपको अर्ली डिटेक्शन के फायदे बता दिए ऑलरेडी 2-3 बार, राइट? तो आपको फीमेल को मेमोग्राम करने चाहिए। ओरल कैंसर में मैं नहीं जाता हूँ, राइट? तो हमने देख लिया कि भाई स्क्रीनिंग क्या है, कौन-कौन से टेस्ट है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, लास्ट 2 स्लाइड, देन आई एम डन, राइट? तो आपने सुना होगा डायग्नोसिस करना है कैंसर का तो बायोप्सी, तो आपने सुना होगा बायोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब क्या हुआ? टुकड़ा हुआ। जैसे भी ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट के अंदर निप्पल है, राइट? इधर किसी को गठान है इधर, राइट? फीमेल को गठान है, तो हम क्या करते हैं? एक छोटी-सी सुई इधर डायरेक्टली लंप के अंदर डालते हैं और उससे उसका पीस ले लेते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। दैट्स इट। बायोप्सी यानी जहाँ से भी कैंसर की शक्यता या संभावना लग रही है, वहाँ से एक छोटा-सा पीस लेना, उसको हम इंग्लिश में बायोप्सी बोलते हैं, दैट्स इट। तो बायोप्सी करने से पता चल जाता है कि उसमें कौन से सेल है, किस टाइप के सेल है, किस प्रकार के सेल है, उससे हम उसका डायग्नोसिस और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और डायग्नोसिस के बाद में आता है स्टेज। आपने सुना होगा कई बार कि कैंसर की स्टेज कौन-सी है, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है, तो ये कौन-सी स्टेज है? तो कैंसर की स्टेज जानने के लिए पहले, बहुत बरसों पहले क्या था? सिंपल टेस्ट था, एक्स-रे और सोनोग्राफी था। सुना होगा आपने? सुना है कि नहीं सुना सर? एक्स-रे और सोनोग्राफी था। फिर उसके बाद में क्या Yes, of आया? course, sir. या उसके बाद में क्या है सर? सीटी स्कैन और एमआरआई आया है। उसके बाद में क्या है? तो पैट स्कैन। तो अभी आप देखोगे, आपने कहीं पर भी बोर्ड भी देखा होगा आते-जाते, घर जाते हुए बड़ी हॉस्पिटल में, पैट स्कैन अवेलेबल हियर। तो पैट स्कैन यानी एक ऐसी स्कैन है जो पूरे हेड टू टो यानी पूरा सिर से पाँव तक एक ही इस मशीन के अंदर पूरे बॉडी की स्कैन हो जाती है, जिसको हम पैट स्कैन या पैट सीटी स्कैन भी बोलते हैं। तो ऐसी एक कुछ दिखने में मशीन होती है जो आमतौर पे सीटी स्कैन जैसी होती है। उसमें पेन नहीं होता, डरने वाली, घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो पैट स्कैन से हमको पता चलता है कि ये कैंसर शरीर में से, स्तन में से, लीवर में, किडनी में, हड्डियों में, बोन में, ब्रेन में फैली है कि नहीं फैली है, उसके ऊपर हमारी ट्रीटमेंट होती है। और ट्रीटमेंट के आज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो हम नहीं जानते हैं। हम बहुत एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, पर हमको ही नहीं पता है कि भाई इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है आज की दुनिया में। हमने तो सिर्फ सर 3 ही सुने हैं सालों से कि हाँ भाई, किसी को कैंसर हो तो सर्जरी हो सकती है, किसी की कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी, बस ये हमने 3 ही सुने हैं। पर उसके बाद में नई अभी लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी इजीली अवेलेबल है, हार्मोनल थेरेपी अवेलेबल है, टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट अवेलेबल है, और एक और मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ जिसको कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं। शायद आपने पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा, कार टी सेल थेरेपी। तो इतने सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है और हम मायूस होके बैठे हैं कि अभी कैंसर हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हमारे दिमाग के अंदर घर कर गई है ऐसी कोई मेंटालिटी, जिससे मरीज बेचारा 5 साल जीने वाला था, वो 5 महीने में मर जाता है। क्यों? क्योंकि हम ही खुद नेगेटिव हो गए, ओह! अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप तो अभी मर गए, बस हो गया, तो बेचारा 5 महीने में मर जाएगा, जो 5 साल जीने वाला था, राइट? तो अभी नेगेटिव अप्रोच मत रखिए, आप अच्छे डॉक्टर को, आपके डॉक्टर को, अच्छी इंस्टीट्यूट में अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ, आई एम श्योर ही विल गाइड यू एक्सट्रीमली वेल। सो दिस इज़ सर्जरी, दिस इज़ कीमोथेरेपी जो नस के अंदर इंजेक्शन देते हैं, रेडियोथेरेपी ऐसा मशीन होता है, जिसके अंदर मरीज को रखते हैं और रेडिएशन देते हैं, और उसके अलावा सभी ट्रीटमेंट। तो लास्ट स्लाइड ऑफ माय टॉक इज़ टेक होम मैसेज। मैंने आधे घंटे आपको ये लेक्चर या भाषण दिया, उसका कंक्लूजन क्या है? तो आप सब भूल गए हो मान लो मेरा 30-40 मिनट्स टॉक, और ये एक स्लाइड आप याद रख लो, तो समझ लो कि आपका पूरा 40 मिनट का निचोड़ मैंने ये एक स्लाइड में रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड टेक होम मैसेज। Is cancer curable? Yes or no? Answer is yes. Curable if detected early and treated promptly by the trained expert, right? Saves many lives. Avoid tobacco, alcohol, regular lifestyle, healthy lifestyle, vegetarian diet, right? And vaccine is, right, prevent the cancer, right? And
अवेयरनेस इज की टू सक्सेस। अवेयरनेस, जो मैंने आपको अवेयर किया ना, अभी मैंने आपको समझाया, हो सकता है आपको काफी सारी चीजें पता होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता होगा, काफी सारी, पर शायद मेरे एक्सपीरियंस से मैंने थोड़ी दो चीज आपको शायद नहीं जानने को मिली होगी, जो हम थोड़ा डिस्कशन 5 मिनट करेंगे। तो ये सब अवेयरनेस करने से यू कैन सेव द लाइफ। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे 12th में या कैसे नीट में या कैसे उसको स्कोर करना, आपके पास कुछ गाइडेंस ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। पर मान लो आपके पास बढ़िया से बढ़िया कोच है, बढ़िया मटेरियल है, बढ़िया स्टडी मटेरियल है, राइट, बढ़िया एक्सीलेंट एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली आप स्कोर करोगे, एआईआर आएगा आपका। क्यों? सब बेहतरीन है आपके पास तो आएगा ना। जैसे नॉलेज बेहतरीन होगा तो आप काफी सारी लाइफ को बचा सकते हैं। So that's all. This is what my talk is all about. So that's it. This is my number 9825578080. Right. So if you wish, you can note down, you can write down. Even if you forget it, you can call to your HR, Vandana madam. She will provide my number. This is my permanent number on all medias. I mean, WhatsApp, mobile, bot.in, blah, blah, whatever. This is only number, right? So you can approach me. I am extremely happy to guide you, to teach you, to coach you, and try to give you the proper idea about whatever your problem, especially blood disease and cancer. So that's all. Thank you very much. Now this is open for all questions. So hopefully, sorry to say, but I don't know name of each and every expert in the group. So apologize me by not mentioning the name of all expert in the meeting. But now it's open for all. I mean, you can ask me some questions if you wish to, and give your feedback how it was overall. It was it informative or not? Thank you, Dr. Pandey. Thank you very much. Actually, we have our company team members as students. Those are preparing for NEET. Excellent, sir. Excellent. So There are they are lots of very, questions comes in the need from this lecture, sir. Believe me. Mammogram, pap smear, colon cancer. This lot of things comes from exam point of view. So that in that way, it is also important, sir. एक मेरा सर कॉमन साहब से सवाल है। किससे? मैं एक सवाल आपसे ये है हाँ कि हाँ, पूछिए सर, पूछिए। हमने टोबैको की बात की, हाँ सर। बट फिल्म स्टार हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको देखकर जो ये बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि टोबैको लेना कूल है, या फिर हीरो सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने से हम हीरो के जैसे लगेंगे। तो बच्चों को जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग नहीं कर रहे। तो मैं आपसे ये, बच्चों से ये चाहूंगा कि कम से कम ये इस बात को समझें कि जो फिल्म में हीरो सिगरेट पी रहा है वो झूठ है। वो तो सर ज्यादातर जो लोग दिखाते हैं वो करते नहीं है कुछ, सर। वो पैसे के लिए करते हैं, सर। तो हमको हमारा दिमाग लगाना चाहिए। हमको हमारा दिमाग लगाना चाहिए। और वर्ल्ड में अभी ऐसी एक भी प्रोडक्ट नहीं है टोबैको की जिसके ऊपर मैंडेटरी लिखना जरूरी है, सर। गाइडलाइन है। आप कोई भी टोबैको के ऊपर नहीं लिखा है, मेरे को एक बता दो सर, इसमें देखो टोबैको है और लिखा नहीं है कि टोबैको इज किलिंग, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको किल्स पीपल प्रीमैच्योरली। ऐसा लिखना सर मैंडेटरी है। तो ऐसा कब लिखेंगे? जब कुछ डेंजरस चीज है तभी तो लिखेंगे ना। कुछ डेंजरस है तभी तो लिखेंगे ना। और नहीं लिखा है तो समझ लो सेफ है। नहीं लिखा है तो सेफ है ऑब्वियसली। पर ऐसा होगा नहीं, इम्पॉसिबल है सर। आप कोई भी प्रोडक्ट, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, जर्दा, ये वो, पड़ी का पाउच, वट एवर, आई डोंट नो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, बट इट इज मैंडेटरी। वो लिखा इसलिए सर कि हम लोग तो देख रहे हैं, सर। हम 25 साल के लड़के, 20 साल के लड़के को मरते हुए हम देखते हैं। ये मैं सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ सर, मैं आपको, मैंने ये सब बच्चे को देखा है जो यंग एज में मर जाते हैं, सर। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको डर लगेगा, नींद नहीं आएगी। ऐसे इतने गंदे गंदे फोटो मेरे पास पड़े हैं। पूरा जड़बा निकल गया, पूरा इधर से सीधा टंग दिख रहा है, सीधा इधर से मैंडिबल से सीधा टंग दिख रहा है, ये पूरा पार्ट एक्सपोज हो गया। इधर काफी सारे मैगट्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कीड़े बोलते, पड़ गए, मैगट्स पड़ गए। तो इतने इतने हॉरिबल पिक्चर हम देखते हैं ना। बट हम क्या करें सर, हम डॉक्टर बीइंग क्या करें? उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब उसमें जी तो डाल नहीं सकते ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर डॉक्टर दुनिया में 100 साल जिएगा, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। समझे कि नहीं समझे? हम उसको समझा सकते हैं, हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, हम उसको सही रास्ता दिखा सकते, पर अल्टीमेटली निर्णय तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा ना सर। कि भाई सर, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, तो नहीं लेना है, वन दैट्स ऑफ माय इट। स्टूडेंट अनुज वांट टू आस्क समथिंग। यस सर, आई एम हैप्पी टू आंसर। जितने क्वेश्चन आएंगे उतना मजा आएगा सर।
यस अनुज, हेलो सर। यस सर, अनुज सर, प्लीज टेल मी सर। सर मेरी एक दोस्त थी सर जिसको ब्लड कैंसर था। ओके सर, जिसको हम वो सर ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर इज ल्यूकेमिया या सर वो क्यूरेबल है क्या? क्योरेबल है सर। कौन सी टाइप की है, कौन सी स्टेज की है, कौन सी दवाई चल रही है, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप उनके रिपोर्ट मेरे को अच्छी है, सब उसके मेन रिपोर्ट्स है, उसको पता होगा उनके रिलेटिव को, तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं देख के आपको ट्रीटमेंट भी गाइड टेलीफोनिकली कर सकता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, या उनकी ट्रीटमेंट चालू है तो ट्रीटमेंट का भी भेज देना, तो मैं बोलूंगा देख के हाँ भाई सर ये बरोबर है, सही जा रहा है, आपका राइट डायरेक्शन में है। राइट डायरेक्शन में ही होगा ऑब्वियसली, क्वालिफाइड आदमी ट्रीट कर रहा है तो, but still I can give you my second opinion and I can solve your queries, या उनके जो पेरेंट्स के क्वेश्चन है तो मैं उनको थोड़ा ब्रीफ गाइड कर सकता हूँ। सर मेरी वो दोस्त थी जिसको 5 साल की उम्र में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। वो सर राइट। अभी 15 साल की उम्र में अभी नहीं रही सर वो। आई मीन शी डाइड। हेलो। ये सर शी इज नो मोर। शी पास्ड अवे, हाँ हाँ हाँ, तो मीन्स कुछ होगा इधर कैंसर वापस आ गया होगा, रिलैप्स हो गया होगा उसको, या कुछ कैंसर की कॉम्प्लिकेशन में कुछ इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, उसमें कुछ हुआ होगा। अब अपने पास इतनी डिटेल हिस्ट्री नहीं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई शी इज नो मोर विद अस, तो थोड़ा पेपर्स देखे या थोड़ा हिस्ट्री देखे या उसके रिपोर्ट्स देखे तो आइडिया आएगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होती है तो डेफिनेटली वो मिट सकती है। मैंने बताया ना, इंडिया में डॉक्टर के पास पहुंचने में मरीज काफी अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देता है, ये मैं एक दो एकदम तजुर्बे से बता रहा हूँ सर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, चुपचाप आंख बंद करके आपको जो अच्छा लगे वो डॉक्टर के पास अच्छी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उससे आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट एक्सपर्ट के पास चले गए, अब मेरे को जॉब चाहिए, मैं खुद से कहाँ डालूंगा, कितनी कंपनियों में डालूंगा, मैं क्या करूंगा? नॉक्स को दे दूंगा सर ये मेरा सीवी है, लो मेरे को कोई सेट कर दो। सिंपल, कितना आसान काम हो गया कि भाई आपके पास 5,000 कंपनियां हैं, आपको पता है कि कहाँ ये बंदे को डालना है। अब मैं कहाँ से जानता हूँ कौन सी कंपनी मेरे को हायर करेगी, रिक्रूट करेगी डॉक्टर को? तो मेरा सिंपल लॉजिक क्या बोलता है, नॉक्स को दे दो, खलास, काम हो गया मेरा। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट के पास सिस्टम डेवलप है, मेरे पास सिस्टम डेवलप है। ठीक है ना सर? एक छोटा सा सवाल सर ये है Yes, sir. कि क्या कैंसर महिला या पुरुष में अंतर करता है, या मतलब महिला या पुरुष दोनों में से किसी को इसके होने की संभावना ज्यादा होती है? इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है थोड़ा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रिकी भी है, पर कुछ कैंसर फीमेल में ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिए ब्रेस्ट कैंसर, ऑब्वियसली, राइट, फीमेल में ज्यादा होते हैं, राइट। हेड एंड नेक कैंसर है जैसे मेल में ज्यादा होते हैं। अगेन लाइफस्टाइल आता है सर, देखो लाइफस्टाइल, तम्बाकू लेडीज कम खाती है तो लेडीज को मुंह के कैंसर आपने कम देखे होंगे, लेडीज को लंग कैंसर आपने कम देखे होंगे, क्यों? क्योंकि वो टोबैको रिलेटेड है। तो कुछ कैंसर फीमेल में ज्यादा है, कुछ कैंसर है वो मेल में ज्यादा है। तो थोड़ा अगेन आगे पीछे कुछ लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है कि इन जनरल जो मैंने 8-9 आपको रिस्क फैक्टर ऑलरेडी बताए स्लाइड में, वो आपको सबको रिड्यूस करने का ट्राई करना चाहिए। भाई आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, करो, टोबैको ले रहे बंद करो, अल्कोहल ले रहे बंद करो, ज्यादा धूप में 8-8 घंटे घूम रहे, थोड़ा सनस्क्रीन लगाओ या थोड़ा उसका ध्यान रखो, आपका ओबेसिटी है वजन कम करो, ब्ला ब्ला। तो आप रिड्यूस करके आपके रिस्क फैक्टर को, आप कैंसर होने की संभावना को काफी हद तक खुद से कम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम फीलिंग वेरी obliged, एंड माय स्टूडेंट जो अभी नीट देंगे, these are going to be future doctors. They are यस also सर। very inspired. From bottom of my heart, नहीं सर, माय especially from प्लेजर my सर। student, we are very thankful to you. नहीं नहीं, नो नीड टू बी थैंकफुल सर, इट्स माय मॉरल ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल एंड दिस इज द पैशन फॉर मी, राइट, इट इज पैशन फॉर मी, कोचिंग इज माय पैशन। Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर Anybody योर। of you want to ask any question? No. Say thanks to doctor. नो नो सर, खाली स्टूडेंट में से किसी को एक दो फीडबैक कुछ देना है तो आई वुड बी हैप्पी कि उनको कुछ नया जानने को मिला या कुछ सीखने को मिला। कुछ स्टूडेंट है शायद अभी भी ग्रुप में या सुन रहे मेरे को। Thank, thank you, sir, for your survey about this. वेरी गुड, ये Few of कुछ you, मैंने Manoj.
कुछ मेरे पिक्चर्स है जो मैं आज मेरा एक ऑल इंडिया रेडियो पे भी एक आएगा शायद इंटरव्यू। हमने कल एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था, तो मैं आपको वंदना मैडम को रखूंगा अभी। ये कुछ अभी रिसेंटली हमने नर्सिंग का भी लेक्चर लिया था, अभी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर लिया था। एक अभी मैं कनाडा गया था 3 महीने पहले, तो डरहाम कॉलेज में लिया था इसे, इन कनाडा टोरंटो। तो इट्स माय हॉबी। अभी एक जस्ट वर्ल्ड वुमेन डे पे मैंने एक नियर बाय अहमदाबाद कंपनी में 8 मार्च को लिया था, वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे था उस दिन, शिवरात्रि भी थी। तो ये एक इंटरनेशनल इमिग्रेशन कंपनी में मैंने फिजिकल लेक्चर लिया था। तो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर एंड प्रिविलेज एंड ऑनर टू मेक मी ऑनलाइन विथ योर टीम, and I will looking forward for further lectures, right, and spreading the awareness of cancer and diseases and various diseases. So don't hesitate to reach out to me. I am extremely approachable guy, easily available, not busy like you. So feel free to call or contact me. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Keep in touch, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.